सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी यहां पे दोस्तों दी गई है, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन of constant force is directly proportional to distance traveled by the body, write this as linear equation and then draw the graph for the same taking constant force as 1 by 2 unit. From the graph आपको दो चीज ढूंढनी है, find out work done if distance traveled is 8 unit, how much is the distance traveled if the work done is 6 unit. So again दोस्तों there is a lot of information given here, but quickly आप देखोगे दोस्तों, when you look at when आप इसे जब आप when you read the question again, ये है हमारी सेकंड एग्जांपल, when you read the question again आप क्लियरली देखोगे दोस्तों, the two things that are important here, एक वो है the work done by a body on application of constant force is directly proportional. ये जो work done है दोस्तों, that is directly proportional to the distance traveled by the body. So इसका मतलब ये है दोस्तों, the work done जो है वो है proportional to the distance traveled. So ये डिपेंड करती है डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर. So हमें इसे we have to write it as linear equation. Now अभी क्या करेंगे दोस्तों, we will say let the work done be W and let the distance traveled be D. Now normally दोस्तों हम लेते हैं इसे x and y, right? अगर हमें unknown दी जाती है तो, but यहाँ पे दोस्तों we want to stay in the theme of the question. यहाँ पे work done है, distance है, so we are going to use work done के लिए W and distance के लिए D, right? So अभी दोस्तों what is the condition, what is the statement? The statement is telling that work done is directly proportional to distance traveled. So directly proportional का मतलब क्या है दोस्तों? Directly proportional का मतलब है work done is directly proportional to the distance traveled. जब कभी आपको ऐसे करके दी जाती है, you know that this means directly proportional symbol. इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो वर्क डन बढ़ती है, डिस्टेंस कम होती है तो वर्क डन कम होती है. अगर आपको मालूम है दोस्तों फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस कि वर्क डन W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इसे इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं देन दिस ऑलवेज बिकम्स ऑफ दिस फॉर्मेट, जहां पे यू हैव दिस एज अ कांस्टेंट. मतलब कि अगर दोस्तों मान लीजिए, चलिए एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए यू हैव A प्रोपोर्शनल टू B, इसे अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है देन वी विल राइट इट एज A इक्वल्स टू K टाइम्स B, राइट, जहां पे K इज योर कांस्टेंट. सो सिमिलरली यहां पे दोस्तों हमने देखा W प्रोपोर्शनल टू D, सो वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स D. ना एक और चीज दोस्तों, अगर आप इफ यू वेर स्टिल कंफ्यूज्ड कि why we have taken this and why we have not somehow used the constant force in forming the linear equation, आप देखोगे दोस्तों, another hint you will get is from your questions. If you look at these two questions दोस्तों, आप देखोगे find out work done if distance traveled is something, how much is the distance traveled if work done is something. So clearly दोस्तों the relationship is between these two. ये जो constant force है हम अभी बात करेंगे where we are going to use this, but जो दो key important unknown है वो है work done and distance traveled. So this is another way to make sure दोस्तों that you get your equation right. क्योंकि अगर आप equation गलत लिखते हो then everything will be wrong. Equation गलत लिखने से your graph, your solutions will be wrong. अगर आपकी solutions wrong होगी then your points will be wrong and then your graph will be wrong, right? So दोस्तों you want to pay very close attention to exactly how you frame the linear equation. अभी दोस्तों यहां पे हमें दी गई है ये जो कांस्टेंट है, यहां पे दिया गया है that taking the constant force equals 1 by 2. So हमें दी गई है K is equal to 1 by 2 unit. इसका मतलब ये है दोस्तों हमारी जो इक्वेशन है W is equal to actually 1 by 2 times D. एंड आप नोटिस करोगे दोस्तों दिस इज एक्चुअली आपकी साइंस में या फिजिक्स में दिस इज अ फॉर्मूला कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस. बिकॉज ये हमारी फिजिक्स की क्लास या साइंस की क्लास नहीं है दोस्तों, सो वी आर बेसिकली जस्ट गोइंग मैथमेटिकली कि अगर वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस देन इसे हम लिखते हैं W इक्वल सम कांस्टेंट इनटू D. कांस्टेंट की वैल्यू है 1 by 2 यूनिट, सो K इक्वल टू 1 by 2 डालने से वी गेट W इक्वल टू 1 by 2 D. सो ये है हमारी इक्वेशन. Now चलिए we have to still find out the solution and then we still have to find out we have to draw the graph, right? So हमारी जो equation है वो है W equal to 1 by 2 times D, right?
चलिए, सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू। आप नोटिस करोगे दोस्तों, दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब कभी आप इसे ड्रॉ करोगे, आपको जस्ट ध्यान में रखनी है दैट योर लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। मतलब दिस शुड बी सच अ लाइन दैट विल गो थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज हमें मालूम है y इक्वल टू mx फॉर्मेट अगर होती है, दीज लाइन्स गो थ्रू ओरिजिन। लाइन ऐसे हो सकती है, या फिर द लाइन कैन बी समथिंग लाइक दिस, कोई भी हो, इट हैज टू गो थ्रू द ओरिजिन। Now दोस्तों, again now we have to take some values for x and then we have to find out values for y। एक काम करते चलिए दोस्तों, let us take x इक्वल टू, मान लीजिए for x इक्वल टू 2, y will be equal to, y है 1/2 times d है 2, so ये कैंसिल हो गई दोस्तों, y बन गई 1। चलिए, so this was the first value। चलिए यहाँ पे let us take the second value। so this time let us take x इक्वल टू, मान लीजिए 4। अगर x इक्वल टू 4 है, देन y इक्वल टू 1/2 टाइम्स x विच इज 4, और ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो y बन गई 2। थर्ड पॉइंट हमारी, जो हमें 3 सॉल्यूशंस वी वांट टू फाइंड आउट। चलिए, दिस टाइम लेट अस टेक x इक्वल्स टू 6। अगर हम x इक्वल टू 6 लेते हैं, देन y इक्वल टू 1/2 टाइम्स 6, सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, so y बन गई 3। so दोस्तों, हमने why did we not take x equal to 0, 1, -1, 2, -2 etc। अगर हम चाहते थे दोस्तों, we could have taken this। the reason हमने ऐसी वैल्यूज नहीं ली है, but we have decided to go with x equal to 2, 4, 6 is because दोस्तों, it also depends on what kind of equation आपको दी गई है। यहां पे क्लियरली दोस्तों, आपके डिनोमिनेटर में you have 2, right? so w equals 1/2 times d, right? एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों, हमने यहाँ पे x and y करके ली है। बेसिकली ये x है आपकी d एंड y है आपकी w, राइट? x है आपकी d, ऑल ऑफ दीज x y's should be changed to d and w। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर में 2 है। सो अगर हम न्यूमरेटर में ऐसी नंबर लेते हैं which is a multiple of 2, then we will always end up getting good numbers, clean numbers, that is ये जो y की वैल्यू है या फिर w की जो वैल्यू है, that will be basically always integers and it will be easier to plot those graphs, correct? अगर मान लीजिए आप लेते d equal to 3, then w कितनी होती दोस्तों? w would have been 3/2। अभी दोस्तों 3/2 easy है प्लॉट करना, या फिर it is easier to plot 2 or 3? Clearly it is easier to plot 2, 3 which are integers than this kind of fractional numbers, right? so उसके वजह से दोस्तों we have taken these values for x or for d। चलिए now let us make the table। हम ऐसे करके we form our table। now ऊपर दोस्तों we write the independent variable जो है हमारी d, एंड नीचे हम लिखते हैं w, और हमने 3 सॉल्यूशन ली है, सो वी विल गेट 1, 2 एंड 3 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो पहली वाली दोस्तों है d इक्वल टू 2। हमने कहा दोस्तों एक्चुअली यू शुड चेंज हर एक एक्स वाई को, आप इसे चेंज कर दीजिए। x की जगह आप लिखिए d एंड y की जगह आप लिखिए w, राइट? सो d इक्वल टू 2, देन w इक्वल टू 1। जब d है हमारी 4, w है हमारी 2। जब d है 6, w है 3। अभी दोस्तों हम इन्हें वी वांट टू प्लॉट इट इन ग्राफ। जब हम इसे ग्राफ में डालेंगे दोस्तों, अभी यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी एक्सिस क्या होगी। हमारी कन्वेंशन दोस्तों ऐसी है कि हम वी बेसिकली एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो हम एक काम करते हैं, इसे वी विल पुट d डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड जो वर्क डन है वी विल पुट इट ऑन द y एक्सिस। ये x एक्सिस में जाएगी, इसे हम y एक्सिस में लिखते हैं। ना चलिए दोस्तों, ना हाउ विल आवर ग्राफ लुक लाइक। सो ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड नाउ दोस्तों ये है हमारी ग्राफ। सो चलिए यहां पे लेट अस राइट दिस एज, ये है हमारी x एक्सिस। सो x डैश, y डैश, ये है हमारी 0। यहां पे दोस्तों आप देखिएगा, हमने हर एक
2 यूनिट्स को 1 यूनिट ली है, मतलब कि हर एक 2 स्पेस को वी हैव टेकन देम एज 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली हर एक 2 स्पेस को 1 यूनिट ली है। दैट इज हमारी जो लास्ट एग्जांपल थी वहां पे वी हैड टेकन ये जो स्पेस है 1 स्पेस उसे 1 यूनिट। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वी आर टेकिंग 2 स्पेस एज 1 यूनिट, बोथ ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। अभी दोस्तों हमारी जो पॉइंट्स है, एक और चीज दोस्तों यू ऑलवेज शुड वेरी क्लियरली राइट, यहां पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसे हम एक्स एक्सिस में डाल रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसे हमने डी से रिप्रेजेंट की है, सो दिस इज एक्चुअली ऑन आवर एक्स एक्सिस, एंड यहां पे दोस्तों वाई एक्सिस में क्या है, वर्क डन। जो वर्क डन है दोस्तों जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ऑन द वाई एक्सिस। ना दोस्तों सो हमारी पहली पॉइंट ये है हमारी फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हम 0 से हमें जाना पड़ा 2 यूनिट्स ऑन x एंड देन 1 यूनिट अबव, राइट। सो ये d है दोस्तों 2 एंड w है 1, राइट। हमारी जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, वहां पे हमें 0 से 4 यूनिट आनी पड़ी, d इज 4, एंड देन हमें ऊपर जानी पड़ी 2 यूनिट्स, W है 2, एंड दोस्तों फाइनली वी आर सीइंग आवर थर्ड पॉइंट जहां पे W है जो D है आपकी x एक्सिस में, दैट इज 6, एंड हमें वी हैव टू गो अबव 3 यूनिट, सो ये है 6,3, एंड देन दोस्तों वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। हमें इस लाइन के एंड में वी हैव टू गिव एरोस, और ये है हमारी इक्वेशन दोस्तों, W इक्वल टू D/2, दैट इज द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। Now दोस्तों is our question done? Not yet, because आप recall करोगे there were a few important things that were asked in the question. So let us go back to the question. यहाँ पे दोस्तों there are 2 parts still left. Find out work done अगर distance travel है 8, and then we have to find out distance travel, find distance travel अगर work done है 6. So चलिए दोस्तों we have to now go back and find out these values. सो अगर हमें ढूंढनी है वर्क डन इफ डिस्टेंस इज 8, सो हमें ढूंढनी है दोस्तों वर्क डन इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 8, एंड हमें ढूंढनी है डिस्टेंस इफ वर्क डन इज 6 यूनिट्स। चलिए दोस्तों लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। वर्क डन डिस्टेंस इज 8, सो हमें क्या करनी है दोस्तों, वी हैव टू गो फ्रॉम हियर। दोस्तों बिफोर वी एक्चुअली आंसर दिस पार्ट, एक क्विक रिकैप, आप जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, आप देखोगे दोस्तों हमें जो स्ट्रेट लाइन मिली है, हमने हमारी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दी है, एंड वी हैव एक्सटेंडेड दिस लाइन। वन थिंग दोस्तों आप नोटिस करोगे, हमारी लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड वी नो दैट y इक्वल टू mx फॉर्मेट में ऑल द लाइन्स दे पास थ्रू द ओरिजिन, सो वी नो दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। ओके, नाउ चलिए दोस्तों नाउ लेट अस फाइंड आउट अगर d इज इक्वल टू 8, सो व्हाट इज w। So to find out this दोस्तों हमें क्या करनी है, हमें we have to find out 8 on D. So D है x axis, so 0 से हम 8 आते हैं यहाँ पे, and then यहाँ से we draw a straight line parallel to y axis, और देखते हैं that where does it cut the line. So आप basically scale लेके on 8 you draw a straight line up, और वो जो straight line है दोस्तों we see that it cuts the straight line at this point. सो देन दोस्तों इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो बन जाती है दोस्तों, सो d जो हमारी x है वो है 8, एंड हाउ मच इज w। सो यहां से दोस्तों अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो स्ट्रेट ऐसे करके, सो आप देखोगे अगर आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हो, सो आप देखोगे दैट इट कट्स y एक्सिस एट 4, सो y की कोऑर्डिनेट है और वर्क डन है 4। सो दोस्तों ये है बेसिकली वर्क डन। इसका मतलब है अगर d है 8, देन बेसिकली वी हैव वर्क डन 4। सो ये वैल्यू दोस्तों
दिस गिव्स अस वर्क डन इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, हमारी पहली आंसर। एंड दोस्तों सेकेंड पार्ट है, अगर W है 6, मतलब अभी हमें यहां से 6 यूनिट ऊपर जानी है। सो वी कम हियर, सो नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो अभी क्या करनी दोस्तों, हम 0 से 6 यूनिट ऊपर आए हैं बिकॉज दिस इज आवर वर्क डन वाई एक्सिस। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग आवर रूलर और स्केल एंड पता लगाते हैं वेयर डज दिस कट द लाइन। आप देखोगे दोस्तों, इफ यू डू दैट it will cut the line at this point। इसका मतलब दोस्तों ये है पॉइंट जिसकी वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। सो अभी दोस्तों इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, चलिए अभी यहां से लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर स्ट्रेट डाउन। आप देखोगे दोस्तों इट इज कमिंग हियर, सो इसका मतलब ये है, सो दिस बेसिकली इज 10 11, ये है आपकी 12। सो दोस्तों इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है D है 12 एंड Y है 6। इसका मतलब ये हो दोस्तों, अगर वर्क डन 6 है देन डिस्टेंस है 12। सो यहां से हमें मिलती है D विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी आंसर है W है 4 यूनिट्स and for the second one we get distance is 12 units. So hopefully दोस्तों you have been following us along on all our webisodes for series 4 and all our सवाल जवाब presentations. Like हम आपसे always कहते हैं at the end of it, अगर आपको if you have any questions, any clarification जो आपको चाहिए, बेझिझक होके आप you send us a comment or let us know and we will be very happy to answer them for you. दोस्तों अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।